is we are starting a new chapter, that is admission of a partner. This is the second cause of reconstitution of partnership business. ये एक और कॉज है जिसकी वजह से हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करते हैं, रिकंस्टिट्यूट करते हैं. So we will understand the accounting treatment of admission of our partner. When a new partner will come, so what accounting treatment we will done in that case, this we will understand in this chapter. Okay. Admission of a partner means a new partner is joining your existing firm. A new person or partner is going to join the firm. When the new person or the new partner will join, obviously आपको मालूम है, he will come for the profit. Definitely he want profit in the firm. उसको firm में profit चाहिए. Without profit, no partner can join. Or even in the definition of the partnership we have studied, the partnership is a relationship between persons. Those are agreed to share profit. The relationship without the profit is not the partnership. तो आपको प्रॉफिट तो शेयर कराना ही पड़ेगा. नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट तो उसको देना ही पड़ेगा. तो जब वो प्रॉफिट लेगा, he will be advantageous position to take the profit. You can say he is a gaining partner to take the profit. So who will give this profit sharing? उसको ये गेन देगा कौन? Obviously बात है आपके existing partners. Existing partners, the first work when he will join the firm, सबसे पहला काम क्या करेगा वो? सबसे पहले वो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग अडॉप्ट करेगा अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से. जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देंगे, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं करेगा. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑल कैन सैक्रिफाइस फ्यू शेयर, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी लोग दे सकते हैं, या एनी सम पार्टनर्स कैन गिव. कुछ पार्टनर दे सकते हैं, कोई एक पार्टनर दे सकता है, दो पार्टनर दे सकता है, लेकिन somehow एग्जिस्टिंग में से किसी ना किसी को या सबको कुछ ना कुछ पार्ट अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. बिकॉज हम एक बहुत कॉमन सी बात मानते हैं कि शेयर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो शेयर होता है वो हम कहते हैं होता है 1. वो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. और यू कैन से 100%. भाई 100% से ज्यादा शेयर थोड़ी होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. इस 100% में से तो सब बांट रहे हैं. अभी तक मान लीजिए 2 लोग थे, एग्जिस्टिंग 2 लोग थे, तो मान लीजिए उनका शेयरिंग अगर 2:1 था तो 66.66 और 33.33% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा. बट सपोज वन मोर पर्सन इज ऐड विद देम और they are saying कि now we will compensate like we will share our profit equally. तो क्या होगा? तीनों को equally मतलब everyone will get 33.33. पर ये 33.33 इस नए वाले के लिए आया कहां से? किसने दिया? देखो ए ने दिया ना. ए के पास 66 था पहले, नाउ ए के पास कितना रह गया? 33. दिस sacrifice 33 is given to the new partner. एक एग्जांपल है. दिस इज आई एम गिविंग ओनली द एग्जांपल. कई बार दूसरे शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ और प्रोफेशनल रेशियो भी होंगे, बट दिस इज द वे, दिस इज द कॉमन वे. जब भी कोई भी नया पार्टनर आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल कि एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनर्स सैक्रिफाइस नहीं करते. हाँ बोलो स्तुति. So in last chapter we have to do 26 and 27 question also. So here the first work when the new partner is coming to the business is to finding out who is gaining
who is sacrificing. In short, I can say gaining and sacrificing share. And second important thing, the new profit sharing ratio. The new profit sharing ratio, including the new partner. So first 15 to 17 questions are on these grounds only, finding out gaining and sacrificing share and finding out the new profit sharing ratio of the firm, including the new partner. Although important note मिल पा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन इस चैप्टर में न्यू रेशियो रेयरली यूज होगा. It is less than nothing. Very rarely it will be used. New ratio बहुत कम यूज होगा. Mostly time old ratio यूज होगा. Old ratio maximum time we will use. And एक और रेशियो होता है आपके पास, that is gaining and sacrificing ratio. Gaining and sacrificing ratio ये केवल एक बार यूज होगा, only one time in the goodwill entry. कैसे होगा that we will discuss. ठीक है, so we will be having three ratio in this question: new ratio, old ratio, and gaining and sacrificing ratio. So what we will use? We will mostly time use old ratio. तो आपको old ratio पे फोकस करना है every time. मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे old ratio यूज होने वाला है. केवल एक ही जगह पे आपका gaining and sacrificing ratio यूज होगा, that is for compensation. ठीक है, that is जो partners sacrifice कर रहे हैं उनको compensate करने के लिए, as like the last chapter. Fine. So we are discussing some common ways or common formulas while calculating new ratio. Number one, suppose old ratio is given in the question. Old ratio is given and new rate partner is coming, and for what share he is coming वो भी given है, but this is not given कि जो share नए partner को मिल रहा है, this share is given by which partner? It is not given. क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, नॉट गिवन क्या है कि जो शेयर मिल रहा है नए पार्टनर को वो शेयर कौन दे रहा है. If it is not given, that is you can say sacrificing ratio is not given कि who has given this sacrifice. जो शेयर नए पार्टनर को मिला है definitely it is being sacrificed by the old partners. तो किसने इसको sacrifice किया है, it is not given in the question. So how we will calculate the new ratio? तो new ratio कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? अभी तक आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. न्यू रेशियो. यस, अब इसको जरा इंटरचेंज कर देते हैं. नाउ न्यू रेशियो इज हियर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां चला जाएगा? देयर. ओल्ड रेशियो माइनस sacrificing ratio. Only I have interchanged the above formula. कुछ नया फॉर्मूला नहीं बनाया मैंने, जो ऊपर फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है उसी को मैंने इंटरचेंज किया है. ये न्यू रेशियो मैंने इस साइड ले आया और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने उस साइड दे दिया. तो फॉर्मूला मेरा बन गया न्यू रेशियो का कि ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो न्यू रेशियो में तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों हो, और क्वेश्चन में मुझे सैक्रिफाइसिंग गिवन नहीं है. देन हाउ आई विल कैलकुलेट? उस केस में if
sacrificing is not given, then old ratio of old partners, जो partners का old ratio है, the same will be considered as sacrificing ratio. ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। हम ये कंसीडर करेंगे कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन कि हु हैज गिवन दी शेयर टू न्यू पार्टनर, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि नया जो पार्टनर आया है उसको जो शेयर मिल रहा है वो किसने दिया है। तो ओल्ड रेशियो में जो भी रेशियो होगा हमारा ओल्ड रेशियो, उसी रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर करेंगे कि सभी लोगों ने पुराने रेशियो में सैक्रिफाइस किया। दिस इज बाय डिफॉल्ट। Some questions we are solving. Question number 1. Raj, Ram and Ramesh are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Okay. And they admit Suresh into the partnership for 1/5 share. They admit Suresh for 1/5 share. Now question is saying find the new proportion ratio. अब इस क्वेश्चन में आपको मालूम है न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया कि इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएंगे? Sacrificing ratio equals to 5:3:2. Now I will find out new ratio of Raj new ratio. सर Yes. सर ओल्ड रेशियो अब इनके नए शेयर निकालने के लिए पहले तो we have to consider कि like total share of the firm, एक फर्म में जो शेयर होता है वो कितना होता है 1, ठीक है। एंड सभी पार्टनर्स ने मिला के 1/5 शेयर जो है वो दे दिया सुरेश को। तो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए क्या बचा? रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स, 1 शेयर था उनके पास और 1 में से उन्होंने 1/5 दे दिया। अब उनके पास क्या बचा? 4/5 शेयर बचा। उनके पास क्या बचा? 4/5 शेयर। अब जो 4/5 शेयर होगा इसको वो लोग अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। वन वे इज दिस। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो उन्होंने शेयर दिया है 1/5 शेयर दिया है और किस रेशियो में माना है हमने दिया है वो भी 5:2 में माना है। तो हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे कि 1/5 का 5/10 जो है वो किसने दिया होगा? ए ने दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द एज सैक्रिफाइस शेयर। अभी मुझे क्या मालूम है? ए का सैक्रिफाइस रेशियो मालूम है। रेशियो और सैक्रिफाइस थोड़ा सा अंतर है। रेशियो का मतलब क्या है कि कितना प्रोपोर्शन दिया है एंड एक्चुअल कितना शेयर दिया है तो प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास जो भी शेयर है उसका 5% आई हैव गिवन। मेरे पास 100 रुपए है तो मैंने अपने उसमें से 5% दिए, तो 5% इज द रेशियो। और एक्चुअली कितना आएगा 100 रुपए का 5%? 5 रुपीज। तो 5 रुपीज इज द शेयर। तो मुझे पहले ए बी सी का क्या निकालना पड़ेगा? शेयर। या तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, डायरेक्टली आई कैन डिडक्ट द शेयर फ्रॉम 1 और फिर इसको मैं न्यू ओल्ड रेशियो में एग्जिस्टिंग शेयर को बांट दूंगा तो मेरे पास न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स निकल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो नया पार्टनर आया है दैट इज सुरेश, उसको जो मैंने 1/5 शेयर दिया है इस शेयर को 5:3:2 में डिवाइड कर ले। सो यू विल गेट द शेयर कि किस पार्टनर ने कितना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है 1/5 में से, और वो शेयर उनके एग्जिस्टिंग शेयर में से घटा दिया जाए तो भी न्यू आ जाएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट आई एम डूइंग द क्वेश्चन विद रिमेनिंग शेयर।
See method 1. Let total share equals to 1 and remaining share with the old partners equals to 1 minus 1 by 5, that is 4 by 5. अब now is large new share, इसको भी वो लोग अपने old ratio में बांटेंगे because new ratio of the partners are not given. 4 by 5 into 5 by 10, that is 20 by 50. The new share of Raj will be 20 by 50. The new share of Ram, 4 by 5 multiplied by 3 by 10, that is 12 by 50. And new share of Ramesh, that is 2 by 5 into 1 by 4 by 5 into 2 by 10, that is 8 by 50. अब कौन बच गया हमारे पास? The new partner. Only the new partner is remaining with us. New partner is left. तो new partner कौन है हमारे पास? सुरेश. उसका क्या शेयर है? 1 by 5. अब कॉमन बेस कर लीजिए बस. इसको भी 50 बेस करने के लिए we will multiply and divide by 10. So new ratio becomes 5 by 10. So new ratio of all the partners, Raj, Ram, Ramesh and Suresh, it will be 20 by 50 ratio 12 by 50 ratio 8 by 50 और ratio 5 by 10. आप इसको कट भी कर सकते हैं. Do we have any numbers? So all the numbers will be cut. नहीं. So ratio become 12, 20, 12, 8, 5. This is the ratio. This is 10. 50 आएगा सर नीचे. This is 10 by 50. Sorry. Now we can cut this number also in the shortest form. So 2 से कट कर देते हैं इसको. 10, 6 and 4, 5. 5. So the new ratio is 10, 6, 4, 5. This is the answer from method number 1.